to spread Artemis Hospital, and we are very lucky that we have such clinicians amongst us who are giving, actually best of the outcomes to our patients. Thank you. I'm Dr. Anil Kedarpal. I'm the Deputy Medical Director of the hospital and Head of Transfusion Medicine. On this occasion of World Spine Day, I would like to congratulate our spine surgeons and the team of spine surgeons for doing an excellent job and bringing smiles to patients for the pain that they possibly have got due to spinal problems. So I request the spine surgeon team to take over. Thank you. I'm Dr. Hitesh Garg. I'm heading ortho spine surgery at Artemis Hospital. On this World Spine Day, first of all, I would like to thank Dr. Devina, who is the CEO of our hospital, the management of Artemis Hospital, Dr. Anjali, Dr. Kedarpal, who have supported me through this journey, Dr. Mishra, who has been a part of our team and has made very complex surgeries successful, and my team members, Dr. Himanshu Tyagi and Dr. Tarun. We have been doing spine surgeries since the start of this hospital. I joined spine surgery department in 2010. And today we are celebrating World Spine Day, and we have kept the theme for this month as Safe Spine Surgery Month, because a lot of advancements have happened in the field of spine surgery which has made spine surgery very safe. I'm Dr. Himanshu Tyagi. I'm Senior Consultant Spine Surgeon at Artemis. Today on this occasion of World Spine Day, we have conducted this press conference to tell our message to the patients and to the viewers that spine surgery is a very safe procedure these days. Thanks to the recent advancements that we have, not only in the technology but also in patient care and management, that now we are able to give close to 100% success results in our patients. Whenever we talk about celebrating a day, like today we talk about celebrating World Spine Surgery Day or World Spine Day, we always talk about two aspects. First is the aspect of the doctor or the medical care. Second is patient related. So on this occasion, I would like to throw some light on and emphasize the point that it is not only about providing patient care in the hospital. At Artemis, we also provide patient care after the hospital stay is over, and that is by following strict protocols by which we are able to provide care to the patient. Hello, myself Dr. Tarun Duleja, Associate Consultant, Spine Surgery Team at Artemis Hospital. I feel very lucky to be a part of such a great team. This is the day of World Spine Day. This is the day to celebrate the safety and success of spine surgery. सर हिंदी में बोलिएगा प्लीज। बेसिकली इस पर हमने ये मंथ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मंथ को हमने थीम रखा है सेफ स्पाइन सर्जरी मंथ, और इसके लिए हमने वर्ल्ड स्पाइन डे को चुना है और हमारे पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वर्ल्ड स्पाइन डे पे हम जो मैसेज आम पब्लिक में देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिनकी नसों में दबाव होने की वजह से टांगों में दर्द जा रहा है, और कई पेशेंट में कमजोरी भी आ रही है टांगों में। लेकिन आम हमारी जो सोसाइटी है उसकी ये धारणा है कि स्पाइन सर्जरी में लोगों को डर लगता है, उनको लगता है कि कहीं हम बेड पे ना आ जाएं ऑपरेशन के बाद, कहीं पैरालाइज ना हो जाएं। तो हम ये सेफ स्पाइन सर्जरी मंथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ओवर द लास्ट 20 ईयर अगर हम देखें, जैसे रॉकेट साइंस में, एरोप्लेन साइंस में, हर फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, उसी तरह स्पाइन सर्जरी की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं और सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये स्टार्ट होती है प्री ऑपरेटिव पेशेंट असेसमेंट से। जैसे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है कमर दर्द को लेकर, तो आज हम सिर्फ एक एमआरआई देख के या उसका एमआरआई करके डिसीजन नहीं लेते। आज पिछले 20 साल में इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद हमें आज हम स्पाइन के बायोमैकेनिक्स और स्पाइन के अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके लिए इमेजिंग स्टडीज बहुत एडवांस हो चुकी हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, हमने आर्टेमिस में अब 3 फीट एक्सरे फिल्म लगाई है। 3 फीट का मतलब होता है कि पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में हम फुल लेंथ एक्सरे ले सकते हैं, जिससे हम पूरी स्पाइन को एक ही व्यू में देख सकते हैं, जिससे नॉर्मल स्पाइनल अलाइनमेंट मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। जबकि तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस नहीं कर रहे, हम एक ओवरऑल पेशेंट की अलाइनमेंट देख रहे हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। उसी तरह डिफरेंट पोजीशन में एक्सरे किया जाता है, क्योंकि स्पाइन एक फिक्स स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो आगे झुकने पे स्पाइन में क्या चेंजेस आ रही हैं, पीछे झुकने में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको बोलते हैं एक्सिस इन्फ्लेक्शन, एक्सिस एक्सटेंशन। तो वो
अब 3 टेस्ला MRI मशीन हमारे पास मौजूद है जिसमें डिटेल में बहुत MRI किया जाता है और MRI में आजकल हम डिफरेंट पोजीशन में कर पाते हैं, MRI इन्फ्लेक्शन, MRI एक्सटेंशन। उसी तरह मल्टी स्लाइस CT स्कैन जिससे हम स्पाइन में जो जोड़ होते हैं, स्पाइन की जोड़ों को, उसकी अलाइनमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं। इसके अलावा डेक्सा स्कैन जिससे हम ये पता करते हैं कि स्पाइन में अपनी हड्डियाँ कमजोर तो नहीं, कि हड्डी कमजोर होने की वजह से ही दर्द हो रहा है। तो ये होगी बात कि जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो हम उसको काफ़ी रूट कॉज में जाते हैं कि इसका कारण क्या है, क्या हड्डी का कमजोर होना है, क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम है, क्या इसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, या MRI के नसों के दबाव। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं। एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि ऑपरेशन टेबल में हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम सर्जरी करते हैं, वो टेबल में ही एडवांसमेंट आ गया है। हम जैक्सन टेबल या एलन फ्रेम का यूज़ करते हैं जिसमें कहीं भी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे प्रेशर नहीं आता, तो हम काफ़ी लंबे तक स्पाइन का ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी तरह आजकल हमारे पास न्यूरो मॉनिटरिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम थ्रू सर्जरी पूरी नर्व्स को मॉनिटर करते रहते हैं, नर्व का फंक्शन नॉर्मल। जैसे आमतौर पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा इसमें पैरालिसिस का होता है, तो ऑपरेशन के दौरान हम सारी नसों को मॉनिटर करते रहते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग। अगर कहीं भी हमें लगता है नस में प्रॉब्लम है तो उसी टाइम उसका करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जिससे स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस होने का चांस ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा 3D इमेजिंग हुआ, हम ऑपरेशन थिएटर के दौरान जब स्पाइनल इम्प्लांट डालते हैं उसमें ऑलमोस्ट हम CT स्कैन करके ऑपरेशन के अंदर देख सकते हैं कि हमारे स्पाइनल इम्प्लांट्स की कंडीशन 3D इमेजिंग में बिल्कुल सही है। इसके अलावा हमारे एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। तो इन सबको रखते अगर हम देखें तो ओवरऑल स्पाइन सर्जरी नंबर 1 बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मेरा ये संदेश है कि जो पेशेंट डरे हुए हैं वो एक 20 साल 30 साल पुराने जो रिजल्ट है उस पे जो हमारी सोसाइटी में धारणा है उससे बाहर निकलें और अपने एक डर के कारण दर्द में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी असेसमेंट कराएं, जो भी उनके पास ऑर्थोपेडिक या जो भी स्पाइन सर्जन उनके आसपास हैं उनसे डिटेल्ड असेसमेंट कराएं ताकि वो अपना दर्द रहित जीवन व्यतीत कर सकें। निकलते नहीं है और अपने पेन को फेस करती रहती हैं, तो उनके लिए क्या आप अवेयरनेस के लिए बोलना चाहेंगे कि उनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं तो वो किस तरह से अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आएँ? और एज ए वुमेन मैं बता दूँ कि आज के दिन में पोस्ट कोविड आई थिंक एवरी वुमेन इज़ ए होम मेकर, आई मीन शी इज़ ए होम मेकर एज वेल एज ए प्रोफेशनल, जो घर में काम करती है प्लस जो वर्क फ्रॉम होम करती है। तो बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज आर सिटिंग एट होम एंड वर्किंग फ्रॉम होम। क्या करना चाहिए? आई थिंक द बेस्ट थिंग इफ समवन, बिकॉज आफ्टर 40 नॉट everybody, almost if I'm right, 70% of the population, Indian women population has got osteoporosis. So I think whenever there's an issue, they should come to the hospital. They should see a orthopedician and that way spine surgeon. Eat a well-balanced diet. I think that is what is needed. स्पेशली अगर हम विलेज की बात करें तो वहाँ से महिलाओं को निकालना बहुत मुश्किल होता है, और उनको किस एज में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी होती है? मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि हमारा जो आउटरीच है, वी हैव अ टीम विच एक्चुअली गोज टू द टेरिटरी, वो गांव में जाके पेशेंट्स से मिलती है, हमारे डॉक्टर जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं पेशेंट्स को, और जो वहाँ पर उनको लगता है कि इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, दे आर कॉल्ड टू दिस हॉस्पिटल एंड उनका जो भी ज़रूरत होता है ट्रीटमेंट वो हम कर लेते हैं। किस एज ग्रुप का क्या चाहिए एंड ऑल दैट वो डॉक्टर हितेश ही बता पाए। हमारे पास 2 एज ग्रुप्स होते हैं जिसके पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला होते हैं जो कि 50 से ऊपर के हैं, जिनको कि डीजनरेटेड स्पाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि डिस्क खराब हो गई उम्र के साथ, या जोड़ खराब हो गई, या नसें दबने लगती हैं, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। दूसरा एज ग्रुप होता है 25 से पहले वाला, जिनको कि कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो जब शरीर बन रहा होता है उस वक्त ही बोन ठीक से ना बनी हो, या डिस्क ठीक से ना बनी हो, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये 2 ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स में नॉर्मली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर इंडिकेटेड हो। इनके बीच का जो ग्रुप है नॉर्मली जो यंग एडल्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग आते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ लेके, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लंबा लैपटॉप वर्क रहता है, पुअर पोस्चर रहता है। इस एज ग्रुप में सर्जरी की ज़रूरत कम पड़ती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। बट 60 साल के ऊपर या अगर कोई 15 साल से नीचे का बच्चा आता है बैक पेन लेके या डिफॉर्मिटी लेके या नर्व रिलेटेड सिम्टम्स लेके, तब वो कंडीशन होती है कि जिसमें हम थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं और तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।